is directly switched on across a 20 volts battery, what is the current? Through the resistor. How much is the power loss? Also find energy consumption या consumed in 5 seconds. ठीक है? Try and solve this question and give me the answer. हेलो मैम, Just a minute. हाँ, आया किसी का आंसर? SP शिवम पटेल शिवम पटेल. Yeah बेटा, tell me. मैम जो पावर होगी वो 2 वाट होगी और मैम जो एनर्जी कंजर्व होगी वो 10 जूल होगी. Okay. और किसी का आंसर आया? Current is 0.1 ampere. What is your name? Please tell me your name. Rimjim. Yes, ma'am. हाँ, Rimjim. What is the power? Ma'am, 2 watt. 2 watts. Power is 2 watts. Energy is Ma'am, energy is calculate. Energy 10 joule. What is your name, Yes, beta? ma'am. Tell me your name. Nupur. Ma'am. Nupur Srolia. Yeah, okay. Anybody else who has got the same answer? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Name yourself. Surbi. Power is Shubhi Saxena. Shubhi, you also got the same answer? Ma'am, Molly. Yes, ma'am. Power 2 watt and energy 10 joules. Molly Dubey. Molly, you are saying? Yes, ma'am. Molly Dubey. Yes, ma'am. Correct. Your answer is all right. Yes, ma'am. Am I Yeah, audible? yeah. Molly, you are audible. Okay, beta. ठीक है. Correct answer है ना? So I will just write the Yes, ma'am. solution for the other So students who did not get the answer. Okay, so here it is written a 200 ohm resistance is directly connected across a 200 volts की बैटरी है ना? एक 200 ohm का मैम क्या बेटा, क्या बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? मैम एक रिक्वेस्ट थी मैम, जो आप लैंग्वेज लिखनी वो थोड़ी सी क्लियर नहीं थी मैम. नहीं क्लियर थी? मैंने बोला नहीं था ये लिखते समय? क्या डिक्टेट किया था मैंने? जी मैम. किया था? जी मैम.
डिक्टेट किया था बेटा, सुनना ना तुम थोड़ा सा। क्या लिखा था? a 200 ohm resistance is directly switched on across a 20 volts battery. What is the current through the resistor? How much is the power loss? Also find the energy consumed in 5 seconds. That is it. All right. So the voltage, इसके अंदर हमारा वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट्स बताया गया है क्वेश्चन में। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी बोली गई है? 200 ओम्स, यानी कि इट वुड बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस, इस प्रकार से कनेक्टेड है, ठीक है ना। यहाँ पे एक वोल्टेज है 20 वोल्ट्स का, रेजिस्टेंस 200 ओम्स का कनेक्टेड है इसके साथ। तो तुमको क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड, व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय दिस रेजिस्टर, आल्सो द एनर्जी or the power loss and the energy consumed by this in 5 seconds time is given. Okay, so the formula is P is equals to you know the formula of P in reference with V and R. Who knows the formula? V square by V square by R. R. Any other formula you know? I square R. P is equals to I V I square R. R. है ना? Okay, what is the formula of energy? I square RT. I square RT. I square R into T, है ना? So in this particular equation, in this particular problem, you have to find out the power. Also, you have to find out the energy. Okay, unit of power is watts and the unit of energy is joules. Okay, so अगर हम ये वाले फॉर्मूले से हमें पावर तो we will find out, but for after finding out the power, we have to find out this thing. ओके तो इसके अंदर फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू मल्टीप्लाई द पावर इनटू द टाइम, आल्सो विल गिव यू द सेम थिंग, राइट? या तो ऐसा कर सकते हैं, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इस पे से आई को फाइंड कर लो। आई का ओम्स लॉ से अपन को फॉर्मूला पता है। आई क्या होता है? आई इज इक्वल्स टू वी अपन आर होता है, यही होता है। वी है, आर है, आई फाइंड कर लो। आई को इस वाली इक्वेशन में रख के पावर फाइंड कर लो, आई को इस इक्वेशन में रख के एनर्जी फाइंड कर लो। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो Yes, ma'am. I कितना आएगा? What would be I? It would be equals to 20 divided by 200, which will be equals to 0.1. So from that we get power is equals to 0.1 का the whole square into R. We are having 200 and our answer will be 2 watts. And energy we will get 0.1 square into 200 into time is given. How much it is given? 5 seconds. So it is going to be 0.5. It is going to be 0.5, which is going to give you, sorry, 0.5, it is how much it would be? 5 only, sorry, 5 seconds है ना? Your answer would be 2 into 10 joules. 5, which is equals to 10 joules. All right? Yes, ma'am. So everybody has written this thing in your copies. All of you write it down. I will take the next question then once you have written it in your copies. Yes, ma'am. Done, ma'am. Done. क्वेश्चन नंबर 2। अभी जो बच्चे लोगों को राइटिंग समझ नहीं आ रही उसके लिए मैं बोल रही हूँ, तो साथ साथ लिखते चलना, ठीक है ना? द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन 2 Henry इंडक्टर changes at a rate of 2 ampere per seconds. Find the voltage across it and determine the magnitude of energy stored in the inductor
after 2 seconds. ओके, क्या लिखा देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन 2 हेनरी इंडक्टर चेंजेस एट अ रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकेंड. Find the voltage across it and determine the magnitude of energy stored in the inductor after 2 seconds. अभी किसी को समझने में क्वेश्चन डिफिकल्टी हो रही तो बताइए. I will read it once more. Okay, do it then. मैम वोल्टेज 8 वोल्ट और मैम वो एनर्जी स्टोर्ड इज 16 जूल. Voltage is how much, beta? 8. 8 volts. And What is your energy is name? 16. मैम मुस्कान. Muskan. Okay. Yes मैम. Any other answer? Ma'am, voltage is 4 volt. Yes, ma'am. Okay. 4 आ रहा है. And Yes, ma'am. 4 है voltage. energy is Energy is 16 joule. Yes, ma'am, energy is 16. 16 joule. okay. Okay, no? So I will just solve it. So here it is given that inductor L is कितना 2 हेनरी कैपेसिटी एंड उसके अंदर से जो करंट चेंज हो रहा है यानी कि di by dt कितना चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट इज हाउ मच 2 एम्पियर पर सेकंड, प्रति सेकंड में 2 एम्पियर का चेंज आ रहा है. ठीक है ना. तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा, 2 सेकंड में कितना हो जाएगा 4 एम्पियर हो जाएगा. तुमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस इट एंड डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर आफ्टर द 2 seconds. You have been given it is after 2 seconds. So the voltage across it will be equals to formula of the voltage in an inductor is L di by dt. So here L we are having 2 and di by dt is 2, so we are having 4 volts. Okay, whereas the energy stored in a capacitor is half Li square. ठीक है, and you have to find out the energy after the 2 seconds. So it would be half into 2 इंडक्टर की वैल्यू into आएगा अभी कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच 16 जूल्स. ओके, Yes, ma'am. जितने बच्चों ने 4 और 16 बोला था यू आर करेक्ट. Everybody has written this? Yes ma'am. मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so next is your voltage and the current transformations है ना, voltage and current transformation, current source transformation. तो क्या होता है कि हम लोग जब नेटवर्क को सॉल्व करते हैं, whenever we have a big network we need to solve it or we need to resolve it in something which is easy for us to handle. So at times there is a difficulty that you might have to change the voltage source into a current source or a current source into a voltage source. So there is a technique which is used for doing that conversion. So first is to convert to a current source. You are having basically a voltage source and you have to convert it into a current source. So how do we do it? Voltage source converted into a current source, na? So here we are having a battery
and here we are having a resistance. Okay, so this is your how much 5 volts की battery and here you are having 1 kilo ohm का resistance. Now you are you have to convert it into a current source. तो हमने आपको बताया हुआ है पहले भी कि वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, ऑलवेज दी जो रेजिस्टर होता है वो कैसे कनेक्टेड होता है, इन सीरीज, और करंट सोर्स में कैसा होता है, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल. तो करंट सोर्स में ऐसा आपका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा. आप इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो एक वोल्ट इसका एक करंट की एक वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है यानी कि ये सेम टू सेम रेजिस्टेंस यहाँ पे आप कैसे में कनेक्ट हो जाएगा, पैरेलल में. लेकिन हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसकी क्या वैल्यू होगी, करंट की क्या वैल्यू होगी. तो वेरी सिंपल फॉर्मूला, ओम्स लॉ यूज करेंगे, V इज इक्वल टू I इंटू आर. अभी तुम्हारे पास V है, यू हैव R, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज दी I. यहाँ पर क्या I रहेगा, सो इट वुड बी इक्वल टू I इज इक्वल टू V अपॉन R. सो हाउ मच वुड बी द वैल्यू विच वी विल गेट हियर. यहाँ पर कितना है आपका 5 divided by 1 into 10 to the power 3. So our answer is 5 into 10 to the power minus 3 amperes. या इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 5 मिली एम्पियर से सेम थिंग है. तो यहाँ पे ये सोर्स कितना हो जाएगा 5 मिली एम्पियर्स और ये कितना हो जाएगा 1 किलो ओम्स. ध्यान ये रखना है कि एरो हेड मैंने ऊपर मार्क किया है. रीजन वाई, क्योंकि इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन है, ये प्लस और ये माइनस पोटेंशियल, ये आपका एनोड, ये आपका कैथोड. करंट इधर से फ्लो होएगा, इसीलिए हमने इसको इस प्रकार का मार्क किया हुआ है. अगर ये ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होता तो ये 5 मिली एम्प्स ही रहता, बट द डायरेक्शन ऑफ एरो वुड हैव बीन डाउनवर्ड्स. आया सबको समझ में? कोई बच्चा जिसको ये समझ में नहीं आया बताएं, फिर से एक्सप्लेन कर तो देंगे. मैम मुझे नहीं आया तो कोई आप दिक्कत नहीं. दोबारा हाँ. एक्सप्लेन कर दीजिए. क्या नाम है बेटा आपका? मैम राहुल वर्मा. राहुल वर्मा. देखो क्या मैंने बोला कि कभी कभी क्या होता है, वोल्टेज सोर्स जब हम नेटवर्क रहता है, बहुत बड़ा नेटवर्क रहता है हमारे पास, है ना, सो वी हैव टू अपन को उसको कन्वर्जन करना पड़ता है सिंप्लीफाई करने के लिए, है ना. तो वोल्टेज सोर्स को आप करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, इसका प्रोसीजर बताया मैंने, ठीक है ना. इस प्रकार का अगर तुम्हारे नेटवर्क में एक वोल्टेज सोर्स है और इसको तुमको करंट सोर्स के अंदर परिवर्तित करने का है, तो तुम क्या करोगे, करंट सोर्स का जो डायग्राम रहता है वो हमेशा इसी प्रकार से बनता है. देयर इज अ ऐसे एक सोर्स रहता है और साथ में जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो उसके साथ पैरेलली कनेक्टेड होता है. ये प्रीवियस क्लास में मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया है, ठीक है. तुम प्रेजेंट थे क्या उसमें? नो मैम. इसीलिए आपको नहीं समझ में आया. देखिए, करंट सोर्स के साथ में एक इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल. अब आपका काम क्या है कि इस करंट सोर्स की क्या वैल्यू है और इस पैरेलल रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है आइडेंटिफाई करना और फिर उस सर्किट में जाकर इस चीज को वहां से इस चीज से रिप्लेस करना, ये आपका काम रहेगा, है ना. सो अभी अपने पास यहाँ पर वी आर हैविंग अ वोल्टेज सोर्स और ये रेजिस्टेंस है पैरेलल में. अब मुझे इसका इक्विवेलेंट करंट सोर्स बनाना है और उसके साथ में यही रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करना है. तो पैरेलल में जो कनेक्ट करना है रेजिस्टेंस वो तो हमको इजीली आइडेंटिफाई होता है, 1 किलो ओम्स का पैरेलल में कनेक्ट कर दो. बात रहती है कि इस ये कैसे मैंने यहाँ पे 5 मिली एम्प्स लिख दिया, कैसे लिख दिया, ये ओम्स लॉ के फॉर्मूले से. ओम्स लॉ आपको पता होगा, V इज इक्वल टू I इंटू R होता है ना. अब हमारे पास V की वैल्यू, हमें ये बैटरी है, ये V है अपना, और R की वैल्यू है ये 1 किलो ओम्स, है ना. तो अपन क्या कर देंगे, V अपॉन I कर देंगे तो हमको कितना 5 मिली एम्प्स का सोर्स मिल जाएगा. यहाँ पर एक और करते हैं. आप इसको बताइए, इसका आंसर आप बताइए कितना आएगा. ये यहाँ पे 18 वोल्ट्स की बैटरी लगी है और ये 3 ओम्स का मेरे पास वो है रेजिस्टर. अब आप बताइए आपका जो करंट सोर्स है उसकी क्या वैल्यू आएगी, सेम फॉर्मूला लगा के. राहुल 6 है. यस मैम. राहुल से 6. पूछा बेटा, राहुल से बात कर रहे हैं हम, बाकी आप लोग आप थोड़ी देर शांत रहेंगे. हाँ राहुल. बेटा बताओ राहुल कितना आंसर आया. यस मैम बता रहा. मैम इसका 6 से आंसर आएगा. 6 एम्पियर, वेरी गुड, है ना. यहाँ पे 6 एम्पियर आ जाएगा. और डायरेक्शन ऑफ एरो, ये एरो हेड किधर मार्क होगा, ऊपर की ओर होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है. हमको हमेशा पता है कि करंट इट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टू द लोअर पोटेंशियल, तो हमने ये डायरेक्शन करंट मार्क कर दिया, ठीक है ना. और ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे पैरेलल में ये 3 ओम्स का रेजिस्टेंस ही कनेक्टेड रहेगा. क्लियर है? यस मैम. चलिए
यहाँ पर हम इसको भी लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 18/3 इज योर 6 एम्पियर लिखा हुआ है, ठीक ना। यस मैम। इसको ऊपर कर दे स्क्रीन, लिख लिया सबने कॉपी यस में। मैम। मैम अभी नहीं लिखा। हाँ करें करें, इसको कॉपी में लिखें। एक्सक्यूज मी मैम। क्या बेटा, टेल मी। मैम एक रिक्वेस्ट थी मैम, क्या आप प्लीज अटेंडेंस डाउनलोड कर लेंगी? मैम मैं एक्चुअली रोल प्लेटफॉर्म पे लॉगिन नहीं कर पा रही हूँ। मैंने अच्छा अच्छा, मेल भी किया है और रक्षा मैम से भी बात की है, बट उन्होंने कहा कि करते रहो शायद हो जाए, बट हो नहीं रहा है। बाकी बच्चे लोगों का क्या सीन है, बाकी लोगों का हो रहा है अटेंडेंस मार्क? मेरे साथ नो में भी मैम, सेम मेरा भी नहीं हुआ। मैम मेरा भी मेरा नहीं। मेरा भी नहीं। एक हाथ ही बच्चे लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि FT सारी का क्लास नहीं के साथ प्रॉब्लम है ये? सारी क्लास। मैम मैम सारी मोस्ट ऑफ क्लास कोई में। मार्क के साथ मैम मेरा मतलब चल कोई रहा भी है। attendance- कोई मार्क नहीं कर पा रहा अटेंडेंस। नो मैम। नो मैम मैम चल मेरी रहा है। मार्क हो रही कौन है, एक मैम मिनट, लॉगिन नहीं हो पा कौन रहा है है। जो कर पा रहा है मार्क? मार्क कौन कर पा रहा है, नाम बता बेटा। मैम शिवांश है। गुप्ता। मैम क्या शिवांश का हो रहा है मार्क, मैम तनीषा चतुर्वेदी। शनिशा का भी मैम हो रहा है, रोहन। और मैम मेरा भी हो रहा है, श्रुति श्रुति। मैम अच्छा अच्छा, लॉगिन होने के बाद भी वहाँ पे बहुत से सेशंस शो ही नहीं होते हैं और सब्जेक्ट्स भी शो नहीं हो रहे हैं। हाँ मैम ये होता है। हम सब्जेक्ट सब शो नहीं हो रहे हैं, बस एक ही सब्जेक्ट शो हो रहा है। अच्छा ये कौन सा नहीं, सब्जेक्ट हो रहा है? सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स 1 की अटेंडेंस हो पा रही है, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के रोल पे हम मार्क नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा अच्छा, Yes, ऐसा ma'am. प्रॉब्लम है। तो ये आप लोगों ने इनसे बात करी कि इनको बताया कि आप रक्षा मैडम को और एकता मैडम को ये इन्फॉर्म किया कि हमारी बाकी किसी यस क्लास मैम की नहीं लगता? बताया। यस मैम, रक्षा मैम वो ने बताया था। आपके एंड से ओपन तो करना बेटा पड़ेगा मैडम ने क्या ऑप्शन। बोला है? मैम वो आपको आपके एंड से ओपन मैम करना पड़ेगा ऑप्शन, वो मार्क करने के लिए अटेंडेंस, ताकि वो हम मार्क कर पाए। नहीं, वो तो अटेंडेंस जनरेट करते हैं ना, जब तो तुम्हें दिखेगा। तुम्हें मेरा वो दिख रहा है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वो तुमको दिख रहा है उसका कोर्स? यस नो मैम। मैम यस मैम वो दिख दिख रहा रहा है। है। तो अटेंडेंस तो मैंने अभी जनरेट नहीं करी है, अभी अटेंडेंस अभी आपकी जनरेट करी नहीं है मैंने। मैम इसमें 1:30 से मैम शुरू है। सब्जेक्ट तो शो हो रहा है, बट वो ये कि उसमें एनरोलमेंट नहीं है, तो इसलिए रुकिए मार्क रुकिए, करने में देख रहे हैं, अटेंडेंस प्रॉब्लम हो रही है। जस्ट अ मिनट, आई एम डूइंग दैट, लेट मी सी।
देखिए मैंने क्रिएट कर दिया, आप लोग अटेंडेंस मार्क करके देखिए। मैम रोल से लगेगी ना? हाँ हाँ रोल से लगेगी, करें मार्क। ओके मैम। ये जुड़ गए आपके नाम, अब आप लोग अटेंडेंस इस पे मार्क कर सकते हैं सभी स्टूडेंट्स। मैम बट लॉगिन इशू आ रहा है मेरे इसमें तो बेटा फिर ये तो अपनी जो मैडम है ना उनको रिपोर्ट करो। फिर मैडम जैसा बोलती है, या तो वो सोनू लोधा सर से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वही देखते हैं इसका। रिक्वेस्ट आगे मतलब रिस्पेक्टेड इंचार्जेस के पास में कर दी है, तो उसके बाद में उनका रिस्पांस आएगा। हाँ बस। मैम अटेंडेंस का तो बस वो दिखा रहा है कि डेट ट्यूसडे 16 नवंबर 2021, आज की डेट नहीं दिखा रहा है। यस मैम, मेरा भी सेम ऐसे ही है। यस मैम। यस मैम। किसी का नहीं लग रहा है अटेंडेंस भी, किसी का नहीं यस दिख रहा है? मैम, मेरा भी ऐसे ही दिखा रहा है। टॉप 4 वाले अटेंडेंस में लग रहा है। टॉपिक 4 वाले पे लगाओ। हाँ टॉपिक 4 वाले लगाना ना तुमको, टॉपिक 4 में ही तो है ये अटेंडेंस। लग गया मैम। वही तो है ये अटेंडेंस, टॉपिक 4 पे ही तो अटेंडेंस है। ये देखो यहाँ देखें, ये बच्चों ने लगा भी दी अटेंडेंस। ये है कौन है, निलय, राज, प्राची, इन बच्चों ने मार्क कर लिए, बाकी बच्चे भी करें अटेंडेंस मार्क, सबकी हो रही है। मतलब कुछ वो आपकी एंड से, क्योंकि आप इससे अभी इतना वो नहीं हो, यू आर नॉट वेरी हैंड्स ऑन विद दिस सॉफ्टवेयर or this type of a site, that is why maybe you are having trouble, but it is very easy। जैसे मैंने क्रिएट किया ना, आप सीखिएगा अटेंडेंस, आपको उसमें मैम क्लिक हो गए। करके अटेंडेंस मार्क करना। हाँ हो भाई कहाँ से लगाई मैम मार्क आपने हो गए अटेंडेंस? अटेंडेंस। भाई कहाँ से मार्क की? मार्क करेंगे जिनका हो नहीं रहा है। टॉपिक 4 पे मार्क हो जाएगी। देखिए एक काम टॉपिक 4 करिए, से हो रही है। अभी सुनो 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 बच्चों सुनो, अभी ये मेरी क्लास है 12 o'clock तक, मैंने 12:40 तक का ऑन करके रखा है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब मार्क कर पाएंगे। ये क्लास के बाद आप अपने ही दोस्तों से इसी रूम में मैं एग्जिट कर जाऊंगी, तो अपना कोई भी बच्चा स्क्रीन शेयर करके एक्सप्लेन कर दे वो कैसे करना उसको, ठीक है ना? हमें कौन सा टॉपिक? ये कौन सा टॉपिक टॉपिक? 4 पे से। टॉपिक 4 पे है, अटेंडेंस 3 के नाम से है, ठीक है ना? यस मैम, मेरी भी लग गई। हाँ चलो मैम, बताए। मैं क्या करूँ अब? तुम्हारे को प्रॉब्लम है ना? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मैम तनुश्री गुप्ता। मैम मेरे तुम्हारी इसमें भी मेल लग रही है। मैम लॉगिन ही नहीं हो रहा है ना। तुमको रिपोर्ट करना पड़ेगा बेटा, तुमको मैम रिपोर्ट सेम करना प्रॉब्लम मेरा भी पड़ेगा। लॉगिन नहीं हो रहा है। जिन जिनके में मैम प्रॉब्लम लॉगिन आ इशू रही है मेरे कि इसमें भी आ रहा है। आपको अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स जो आपके डिपार्टमेंट वाले हैं, जो इंचार्ज हैं, उनको बताना पड़ेगा। फिर वो आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व करवाएंगे। और रही बात अटेंडेंस की, तो जो बच्चे हैं जिनका ये वाला प्रॉब्लम है वो मुझे नाम बताओ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपका नाम। तो विशाल वर्मा। एक मिनट, वन बाय वन है, जस्ट अ मिनट, I will just tell you and then you give me your name। आज की डेट है 22/11। ओके, कौन बच्चे मार्क नहीं कर पा रहे हैं, नॉट एबल टू मार्क? विशाल वर्मा। तनुश्री गुप्ता। प्रथम गिरी गोस्वामी। एक मिनट, तनुश्री गुप्ता, विशाल वर्मा। विशाल, हाँ, और क्या नाम है? प्रथम गिरी गोस्वामी। श्रेय, यस प्रथम, ठीक है। इतने बच्चों का हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, आज की डेट के साथ हमने लिख लिया अपना। ओके मैम। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने वहां जाके देखा ही नहीं और तुम यहाँ पे नाम लिखवा रहे हो, ऐसा नहीं करना। तुम्हें हम जेन्युइन लॉग प्रॉब्लम मैम तो एक कंसिडर है, तो हाफ ऑफ द देखा है, लॉगिन हो नहीं रहा है। नॉट इन दिस पोजीशन की हमारा हो ही नहीं रहा है। क्या नाम है और बोलो, क्या नाम है? प्रथम के बाद किसने नाम बोला? शिवम पटेल। चलिए
इतने बच्चों का हम लास्ट में, अगर आपका शॉर्ट अटेंडेंस होगा तो एडजस्ट करेंगे एक दिन का, ठीक है। नहीं तो आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट अटेंडेंस नहीं होएगा तो आपको इस एक अटेंडेंस से यू विल नॉट बी हैविंग एनी डिफिकल्टी इन दैट, ओके फाइन। नेक्स्ट हमारा ये एक और प्रॉब्लम था, ये एक और न्यूमेरिकल है, इसे सॉल्व करें। मैम मेरा फर्स्ट वाला लिख नहीं पाया न्यूमेरिकल, अब नहीं लिख पाए तो हाँ मैम। इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करने का है और इसके सामने पैरेलल में यहाँ पे ये ऐसे लगेगा, ठीक है ना। तुम्हारा जस्ट मिनट, जल्दी कर लो नोट। ओके मैम। मैम इसके और ऊपर है, इसके और ऊपर वाला, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने करवाया था। वेयर वर यू? यस मैम यही है। वेयर वर यू? क्यों नहीं किया ये? कितनी देर तो ऑन था ये चीज, कितनी देर मैंने सॉल्व किया, तुम Sorry, लेट ma'am. ज्वाइन करे हो क्या? यस मैम वेरी बैड, हो ऐसा गया नहीं मैम, करना। सॉरी मैम, अब नहीं होगा। चलिए इसका आंसर बताएं। 5 ampere current. 5 एम्पियर करंट, 5 ampere And downwards arrow. side the arrow. डाउन साइड एरो, वेरी गुड। 5 एम्पियर्स कैसे? करंट की वैल्यू क्या होगी, ये सॉरी ये 5 ओम्स है यहाँ पे ना, करंट की 5 वैल्यू क्या होगी आपकी 25/5, दैट इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर। यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर है ना, सो ये 5 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और यही वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे ये गलत लिखा है मैंने, यहाँ पे ये 5 ओम्स का है, यहाँ पे भी 5 ओम्स है ना, ओके। अब सिमिलर थिंग्स वी कैन, आपको अगर करंट सोर्स दिया और आपसे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है तो सिमिलरली ओम्स लॉ का यही फॉर्मूला यूज होगा, बस डिफरेंस ये है कि अब आपका जो सोर्स रहेगा और ये जो रेजिस्टेंस होगा ये कैसे लगेगा, सीरीज में। जैसे यहाँ पर एक करंट सोर्स दिया हुआ है, देयर इज अ करंट सोर्स एंड देयर इज अ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये 10 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये 3 एम्पियर का करंट सोर्स है, और आपसे बोल दिया गया है इसका इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स बना के दिखाइए, तो आपको इधर पे इसका वोल्टेज सोर्स बनाना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ ये वाला सेकेंड जो है ये क्या है, वोल्टेज सॉरी करंट सोर्स कन्वर्टेड टू वोल्टेज सोर्स। मैम जी बेटा बताएं। मैम वो ऊपर वाले के क्वेश्चन में जो एरो है वो नीचे क्यों हुआ, वो समझ में नहीं आया। हाँ नीचे क्यों हुआ समझ नहीं आया तुमको? देखो मैंने क्या बताया, ये देखो ये पहले वाले केसेस में बताया ना, देखो इसमें कैसा था, करंट ये वोल्टेज की जो बैटरी लगी थी, ये ऊपर बड़ी डंडी और नीचे छोटी डंडी थी ना, ये बड़ी डंडी इज रिप्रेजेंटेड एज द पॉजिटिव पोटेंशियल और छोटी डंडी इज रिप्रेजेंटेड एज द नेगेटिव पोटेंशियल, प्लस और माइनस है ना। और हमें करंट की धारा किधर से प्रवाह होती है, बेसिकली इट इज फ्रॉम दी हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल है ना, मतलब है ना, हायर पोटेंशियल टू, तो ऐसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, इसीलिए हमने ये एरो मार्क इधर पे ऊपर रखा था। अब यहाँ पर कैसे डायरेक्शन होगा आपका, ये मैंने यहाँ पे गलत दिया है, लिखा है यहाँ पे, इसको क्या ये वाला नेगेटिव था, ये छोटा वाला जो है ये नेगेटिव है और ये वाला क्या पॉजिटिव है ना। यस मैम वो लेकिन अभी पहले प्लस माइनस ऊपर लिखा था इसलिए कंफ्यूजन हो गया। हाँ इसीलिए कंफ्यूजन है, सॉरी है ना, सॉरी मेरी गलती हो गई थी, ऊपर वाला प्लस है नीचे वाला। बड़ी डंडी देख के समझ जाना, ये तो मैंने आपकी सुविधा के लिए ऐसे बनाया है, एग्जामिनेशन में ये प्लस माइनस नहीं देंगे, ये बड़ी और छोटी डंडी देख के आपको समझना पड़ेगी है ना। ये कैथोड है ये एनोड है और करंट ऐसे फ्लो होएगा, यानी कि डाउनवर्ड से फ्लो होगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे डाला है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके 30 volt. Yes ma'am, 30 volt. 30 volt. 30 volts. 30 volts. So we will have a battery और उसकी पोटेंशियल क्या होगी, प्लस से माइनस ऐसी होगी है ना, ये इसी टाइप से होगी क्योंकि ये ऊपर की डायरेक्शन में करंट हो रहा है, इसका मतलब प्लस से माइनस, और साथ ही में रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज। सो वी हैव 10 ohms एंड देन वी हैव 30 volts का बैटरी कनेक्टेड, राइट। एक और न्यूमेरिकल ले लें इसी प्रकार से, ये एरो हेड नीचे है और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है
इसकी वैल्यू है 4 ohms and we are having 6 ampere. ओके, तो इसके लिए बताएं क्या आंसर आएगा? 24 volts. 24 volt. इसमें से 24 जिन volts. बच्चों को ये समझ में नहीं आया 30 किधर से आया, ये इधर से आया, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। यहाँ पे I की वैल्यू गिवन है 3 यानी कि 3 और R की वैल्यू गिवन है 10 यानी कि यहाँ पे 10 यानी कि वोल्टेज हो गया आपका 30 वोल्ट। इधर पे आपका वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? 6 इंटू 4 बोले तो कितना आ जाएगा? 24 volts, है ना। और एरो की डायरेक्शन नीचे की ओर है, इसका मतलब ऐसा होगा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बैटरी, और साथ ही में रेजिस्टेंस ऐसे सीरीज में लग जाएगा। ये आपका यहाँ पे 4 ohms का ही रेजिस्टेंस रहेगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 24 volts. ओके, यस मैम। ओके, ड्रॉ इट इन द कॉपी। मैम ये एरो वाला समझ में नहीं आया। एरो वाला समझ में नहीं आया? देखो ये एरो नीचे की ओर, ये गाना कौन चला रहा है यार? Who is this student? देखिए 6 एम्पियर्स का करंट है, ये नीचे की ओर फ्लो हो रहा है ना? नीचे की ओर फ्लो हो रहा है यानी कि कैसा होगा? करंट ऐसा ही इस बैटरी में से निकल रहा होगा, नीचे से ऊपर की ओर। यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, इसीलिए, है ना, इसी वजह से इसका ऐसा डायरेक्शन बना है। अगर एरो ऊपर की ओर होता तो बैटरी की डायरेक्शन कैसे होती है? ऐसी, प्लस माइनस, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे नीचे की ओर क्वेश्चन में गिवन है, इसीलिए ये बैटरी की ऐसी डायरेक्शन है। अभी समझ में आया? यस मैम, आ गया। करंट की डायरेक्शन। चलिए, सबने लिख लिया ये? कैन आई मूव द स्क्रीन आप? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्लीज ऐसे इनवॉइसेस नहीं क्रिएट करेंगे कोई स्टूडेंट्स, पेरेंट्स के नंबर से लॉगिन करके देखो मेरे यार, तुम लोग अपनी बातें क्लास के बाद इसमें लिखना। मैम आई कैंट सी द स्क्रीन। So our question number 1 is determine the current in 14 ohm resistor in the given network. Okay, in this particular given network, as sometimes such a questions also come. You have to find out the current in the 40 ohm resistance in the given network, and especially it is specifically asked that you have to do it by voltage or current source transformation. In that particular case, how are you going to solve this? You should know. Okay, मतलब अगर आपको स्पेसिफिकली बोल दिया है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको ये जो ऊपर अपन ने करा है वोल्टेज और करंट के ट्रांसफॉर्मेशन, वो वाली यू विल हैव टू अप्लाई इट इन योर पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। ओके, अब इसके अंदर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? यू हैव टू फाइंड आउट what is the current through this 14 ohm resistance, what is the value of the current through this 14 ohm resistance, and there are two sources. This is a 20 ampere current source, it is connected in parallel with a 2 ohm resistance. Likewise here it is a 6 amp resistor connected in parallel with a 10 ohm resistor. Okay, you have to find out what is the current in this particular resistance by using the source transformation. So kindly give me the answer and do it. तो करना क्या रहेगा आपको? यहाँ पर एक आपका करंट सोर्स है, इसको आपको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने का है। यहाँ पे भी करंट सोर्स है, इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने का है, और उसके बाद फिर नेट करंट कितना फ्लो हो रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। मैम 7 point
प्लीज स्विच ऑफ द माइक जिसका मोबाइल बज रहा है. मैम 7.14 एम्पियर. 7.14 ampere. Anybody else? मैम 3.5 एम्पियर. 3.5 ampere. What is your name, beta? Rimjim. Rimjim. Anybody else has got the same answer? Ma'am, 3.5 amperes. Okay. ठीक है ना. सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस करंट सोर्स इनटू अ वोल्टेज सोर्स, है ना. तो व्हाट इट वुड बी, वोल्टेज सोर्स पे करना है, यानी कि एक बैटरी लगेगी और साथ ही में एक रेजिस्टर लगेगा. ठीक है. और इस बैटरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये V की वैल्यू क्या होगी बेसिकली यहाँ पर आपकी 40 वोल्ट. 40 वोल्ट. 40 वोल्ट. तो कितना बचा है बच्चों ने, कितना है V की वैल्यू होगी I इंटू आर, यानी कि यहाँ पे 20 इंटू 2 यानी कि 40 वोल्ट्स का बैटरी है. यहाँ पे ये 40 वोल्ट्स का बैटरी. डायरेक्शन हमारी करेक्ट है क्योंकि करंट ऊपर की ओर फ्लो होगा. साथ ही में ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे इसके सीरीज में लग जाएगा, 2 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे लग जाएगा. अब इस वाले सोर्स को हम कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा करंट सोर्स है और ये रेजिस्टर इन पैरेलल. इसकी वजह से एक बैटरी जो हमें मिलेगी दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस बिकॉज इट इज डाउनवर्ड, है ना. और उसी के साथ में यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो है ये अपन लोगों को इसके पैरेलल में कनेक्ट करने का है. और ये कितना हो जाएगा 10 ओम्स का, सॉरी नॉट पैरेलल में बट इन सीरीज. वोल्टेज सोर्स के साथ तो सीरीज में कनेक्ट होता है ना, तो यहाँ पर सीरीज में ये वाला रेजिस्टेंस आ जाएगा. ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी 10 ओम्स वोल्टेज, 10 ओम्स रेजिस्टर. एंड ये इस सोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, इस सोर्स की वैल्यू होगी आपकी V इज इक्वल्स टू I इंटू आर. यहाँ पे I है 6 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 60 वोल्ट्स की बैटरी. 60 वोल्ट. ये 60 वोल्ट्स की बैटरी कनेक्ट होगी. एंड देन वी हैव द रेजिस्टर इन क्वेश्चन व्हिच इज ऑफ आवर इंटरेस्ट, दैट इज अ 14 ohms. Okay, so mark these points and write it as P and Q. Okay, and now our agenda is to find out what is the current through this resistor. So the current through all of these would be same, है ना, because in series the current is same and and the voltage is different. The voltage drops would be different across these resistors, but the current through these resistors would be same. That is the condition of a series circuit. Everybody knows that. All right. So as we can see that इसमें से क्या होएगा, there would be two currents और ये दोनों ही currents एक दूसरे के कैसे है, opposite in nature है. क्या सीरीज में है क्या ये लोग करंट? सीरीज में करंट्स मतलब इसके जो करंट्स है वो एक दूसरे के साथ एडिटिव में है कि सब्सट्रैक्टिव में है. देखिए आपको देखिएगा यहाँ से करंट ऐसी फ्लो हो रही है और इसकी वजह से जो करंट है ये कैसी फ्लो हो रही है, ऐसी फ्लो हो रही है. एडिटिव है ये, राइट, एडिटिव है ना. तो बताएं कितना आएगा आपका करंट की वैल्यू. आपको इसको और सिंप्लीफाई, यू विल हैव टू सिंप्लीफाई इट मोर. We can think about this battery something like this. This is one battery and this is another battery and
across it there are 3 resistances. Can't we assume it like this, and can't we solve it? 40 and 60 volts, and you have 2, 14 and 10 ohms. So these are additive, so you can add it. How much it will come? It will come 100 volts. So net voltage you are having is your 100 volts, and across these 3 resistances which are connected in series. So what would be the current resistances? How are they going to behave in a series? They will get added, or what would happen? बताएं 26 ohm. Resistance get added. पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम 3 रेजिस्टर्स को लगाते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं ना, होते कि नहीं होते? मैम रेसिप्रोकल ऐड होते हैं, सीरीज में ऐड होते बेटा, है ना? तो ये 4, ये 14 और ये 10, ये क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इन तीनों का? इसका ऐड हो जाएगा, तो यू विल गेट 100 वोल्ट्स, और इसके साथ ही में ये जो रेजिस्टेंस है ये कितना आ गया आपका? 26 ohms 26 resultant or the equivalent resistance. तो अभी आपको easily you can find out what is the current. I would be equals to V by R, which is equals to 100 divided by 26, and your answer would be how much? 3.8 amperes. All right? Yes, ma'am. सबके समझ में? Anybody is having a problem? और माइक ऑन है. मौली दुबे. ओके, ठीक है. So do try and do these type of numericals of the source source transformations. All right? So I will ये न्यूमेरिकल कहाँ मिलेंगे? But I have referred you books, no? I have given you the reference books, no? Yes, see them. Now every book is having. It is not only one book, but in your syllabus also there are so many reference books, and I have also told you how you can download it through the Z libraries. Okay, so whichever book you want, you can download it, and after downloading it, try and solve the numericals. Okay, ma'am. Okay, beta. चलिए ठीक है. Any other problem anybody is having? Okay, fine. So all of you need to give the mark the attendance on the roll platform, and we will meet in the next class. Okay. Anybody was having a problem? Please ask, beta. I am stopping the recording now.